Hi, this is Dr. Udai Prakash. Today I'm going to introduce a patient with avascular necrosis of the hip, or AVN of the hip. So this happens fairly frequently in our country. Young people get affected with AVN of the hip. Usually both sides are affected, and in this scenario the patient's blood supply to the head of the femur or to the ball of the hip gets affected. There are many reasons for it, but quite often we don't know what the reason is, like in this particular case. But most of the reasons for AVN of the hip include steroid abuse or steroid use, like cortisone or methylprednisolone or dexamethasone. All these steroids are used widely in our country by doctors. And unfortunately, the side effect in some people includes this condition called AVN. So AVN can be quite a painful condition. The other cause, which is also quite common in our country, is alcohol abuse. So people who are alcoholics can occasionally, or do binge drinking, can sometimes present with avascular necrosis of the hip, or AVN of the hip. So here we have Mr. Jaiswal, who currently is 37 years of age. He presented to us about 5 or 6 years ago with a 2-month history of pain in his left hip. There is no history of any abuse of steroid or alcohol in the past, so he probably falls in the category where we don't know what causes this. So he presented to us with painful left hip, and the MRI scan at that stage showed that he had stage 2 out of 5, stage 2 of AVN of the hip. And at this stage, usually we offer, because there is no medicine for it, we offer a simple operation called core decompression. So core decompression essentially removes the dead areas of the ball of the hip, which is caused by low blood supply to the hip, which leads obviously to a dead bone. So this dead bone is the cause of the pain. So the core decompression essentially removes the dead bone and also allows new blood supply to form through the channels through which the core decompression is done. So he underwent that procedure, but unfortunately it didn't quite work for him. I think within 3 or 4 years his pain was back, and that's when we decided to go for a total hip replacement, because by this time his hip was quite deformed and he was in a lot of pain, which was affecting his activities of daily living. So this hip replacement was done 2 years ago roughly, and I'm glad to say that he's absolutely fine and doing extremely well. He has what we call an uncemented total hip replacement with a ceramic on ceramic bearing, and this is the best bearing couple that we have in the world, and hopefully this should last him for many decades to come. Jaiswal ji, आप 5 साल पहले आए थे यहाँ पे। जी, आपको क्या प्रॉब्लम था जब? मेरे को लेफ्ट पैर में बहुत दर्द हो रहा था, पैर उठा के पैर रखने नहीं आ रहा था सर मेरे को। कितने दिन हो गए थे? मेरे को 1 महीना 1.5 महीने से पैर का दर्द था मेरे को। जी 2015 में। जी हाँ सर। तो हम लोग क्या बोले आप आए थे उसके लिए मेरे को थोड़ा पहले ट्रीटमेंट, पहले 1 वीक के लिए टैबलेट्स दिए, उसके बाद फिर मेरे को MRI स्कैन कराओ बोले। MRI स्कैन में मेरे को मालूम हुआ कि ये इसमें बॉल में कुछ प्रॉब्लम है बोल के, इसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा बोल के बोले ये बॉल में। तो जब वो उसके लिए को डिकम्प्रेशन करेंगे बोल के आप मेरे को सजेशन दिए थे। हमारे बारे में बताया कौन आपको? मेरे को ये डॉक्टर रवि कुमार सर बताए थे मेरे को। कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट है, फैमिली डॉक्टर है हमारे। जी सर। तो आप उनके रेफरेंस से MRI का AVN बोल के डायग्नोसिस हुआ? यस एब्सोल्युटली। बॉल का कंडीशन ठीक ही था जब जी, हम लोग बोले कि कोर डिकम्प्रेशन करके उसको ठीक करेंगे। जी बिल्कुल। तो वो कराए बाद आपको कुछ फायदा हुआ? उसके बाद मेरे को 2 साल तक, मेरे को 2-3 साल तक मेरे को अच्छा था सर। उसके बाद में जैसा जैसा वो उसका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा, वो मेरे को फिर पेन स्टार्ट होने लगा था। जी सर। तो फिर हम लोग क्या बताएं आपको? तो उसके बाद अभी बेटर टू चेंज द बॉल।
बोल के बोले सर, हिप रिप्लेसमेंट करा लो बोल के बोले मेरे तो को। आप पूछे नहीं क्या इतनी यंग उम्र में क्यों कराओ, क्या क्योंकि वो जो आप जो मेरे को जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा था वो पूरा रुक गया बोल के बोले सर मेरे को आप लोग। मैं आप लोग पूरा उसका ब्लड सर्कुलेशन रुक गया। जो लास्ट टाइम कराए थे वो एक अपना कोशिश थी एक, अगर इसको और एक 10 साल अगर जितने साल चला उतने साल चला सकते, जो कोर डिकम्प्रेशन करे जितने साल चला उतने साल चला सकते हैं बोल के बोले। इसके बाद हिप रिप्लेसमेंट कंपलसरी है बोल के बोले आप लोग। जी सर, तो अनफॉर्चुनेटली आपको 3 साल चलाओ। जी जी सर, ठीक है। तो आप डिसाइड करें कि हिप रिप्लेसमेंट करा लेना। बिल्कुल तो सर। आप जब सोच रहे थे उसके बारे में, आपके क्या सोच रहे थे? मतलब आपको कुछ फियर था क्या, कुछ डर था क्या इसके बारे में? बस ये डर था कि बाद में फिर मैं चल सकता हूँ नहीं, बाद में ज़्यादा बैठ सकता हूँ नहीं, क्योंकि इससे जो पेन था मेरा, बिल्कुल भी मैं आधा घंटा भी मैं चेयर पे नहीं बैठ सकता था, चेयर पे भी नहीं बैठ सकता था। और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में आपको कुछ लोग बताए क्या, कुछ कहानियाँ बताएं या डराए या कुछ करे थे? मतलब यहाँ से यहाँ पे सर के आने से पहले भी मैं यहाँ पे 2-3 जगह गया, वहाँ पे गए तो क्या बोले मेरे को, अब ये 2-3 अब डायरेक्ट कोड कंप्रेशन का तो कोई मेरे को बताया ही नहीं मेरे को, पहले तो सीधा रिप्लेसमेंट का ही बताए। ये एक ही हॉस्पिटल था जो मेरे को पहले कोड कंप्रेशन का बताए, बाद 3 इयर्स के बाद मेरे को उसका ज़रूरत पड़ी मेरे को ऐसा। तो नहीं, आपको कुछ गलत फहमियां थे क्या इसके बारे में? नहीं, वैसा नहीं था सर। जब मेरे को कोडी कंप्रेशन का आप सजेशन दिए उसके बाद मेरे को 3 इयर्स के बाद होने के बाद मेरे को 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सही इसका इलाज है बोल के, यहाँ पे सही इलाज होता बोल के। ठीक है। तो आप कराए बाद आपका तजुर्बा कैसा रहा ये हॉस्पिटल? मेरे को 100% सेटिस्फेक्शन था सर मेरे को, और मैं मेरे तरफ से मैं 4 जनों को बोला कि यहाँ का जो तरीका है बहुत सही है बोल के। तो कितने दिन थे आप हॉस्पिटल? मोस्ट ऑफ दिसंबर 1 को मेरा ऑपरेशन हुआ, दिसंबर 6 को मैं डिस्चार्ज हो गया। 5 डेज ओनली। रिकवरी को कितना टाइम लगा? मेरे को विद स्टैंड में 1.5 आवर में मैं एक महीने में मैं स्टैंड पकड़ के चलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मतलब ज़्यादा वेट नहीं डालते हुए लेफ्ट को, लेफ्ट को स्टैंड नहीं, स्टैंड थोड़ा पकड़ता था, उतना वेट नहीं डालता था। अब उसके बाद से हल्लू वेट डालते हुए उसको छोड़ना पड़ा। 3 महीने 2-2.5 महीने तक तो मैं स्टैंड के सहारे चला। यानी स्टिक था या खाली वॉकर था? 1 महीना मैं स्टैंड लेके चला, उसके बाद में वॉकर, उसके बाद में मैं स्टिक लेके चला एक स्टिक लेके। जी। तो 2-2.5 महीने में काम पे चलने लगा। जी, भी चले गए। गाड़ी चलाया? गाड़ी एक 5 मंथ्स के बाद चलाया मैं, वो भी नहीं, ओनली 2 व्हीलर विदाउट गियर। अच्छा, वेरी गुड। और आप जो चलने में प्रॉब्लम था वो सब चला गया क्या? चलने में प्रॉब्लम था वो चले गया, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता था, वो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वो था मेरे को, बैठने वो चले गया मेनली। और आप कितना भी चल सकते हैं? अभी मैं आपको एक 1 किलोमीटर, क्योंकि अभी मैं ये क्या है एक 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से जितना हो सके उतना अवॉइड करता हूँ मैं चलने को, जितना हो सके। सर मेरे को क्योंकि घर पे ही मेरा काम रहता, मेरा शॉप और घर एक ही है मेरे को। लेकिन ऐसा वो घस जाता बोल के ऐसा नहीं है? वैसा नहीं, मगर फिर क्यों रिस्क लेना है अभी। अच्छा, थोड़ा ही हुआ ना अभी। लेकिन आप खुश हैं डेली लाइफ आपका? हाँ बिल्कुल। जो भी आपको वो चीज़ प्रॉब्लम्स हैं उसके नहीं, उसकी तरफ से तो एक पैसे का प्रॉब्लम मेरे को नहीं है सर जी। और आपको आर्टिफिशियल हिप अंदर है जैसा महसूस होता है? बिल्कुल भी नहीं होता कभी भी। सो बेसिकली आप खुश है इसके बारे में? और ये बिल्कुल सर, ये जो भी आप इसका डिसीजन लिए 100% है। बिल्कुल 100% है।